students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is Formula and Functions in Excel 2016. Objectives of learning: formula and functions, performing a simple calculation using formula, functions in MS Excel, performing simple mathematical calculations using functions. तो इस चैप्टर में आप देखेंगे किस तरीके से फॉर्मूला एंड फंक्शंस जो कि आपकी एक्सेल 2016 में होता है किस तरीके से अवेल करा जाता है. Excel is one of the most useful programs and can provide us a wide range of tools to work with data. In this chapter, you will learn how to use formulas and functions in Excel. तो Excel में आपकी wide variety of functions होती हैं जिसको आप अवेल करके अलग अलग टाइप के फीचर्स का एक्सेस ले सकते हैं. तो इस चैप्टर में आप यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से फॉर्मूलाज जो आपके एक्सेल में होते हैं उनको आप यूज करते हैं. Formula. In your mathematics class, you must have used formulae to perform some calculations. Excel also provides us the capability to create our own formulae for calculation in a worksheet. Excel formulae are the expressions that are used for doing calculations on the worksheet data. You can easily create and use formulae in Excel 2016. Values on which operations are performed are called operands. Some examples of formulae are: number 1 is equals to A1 plus B1 plus C1. Here A1, B1 and C1 are the cell addresses that are applied as operands. The plus sign is the operator. Second is equals to 23 plus 78 divided by 2. Here 23, 78 and 2 are the operands. The plus and division are the operators. तो जैसे मैथमेटिक्स की क्लास में आपने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे जिसको यूज़ करते हुए किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला जाता है, उसी मैनर में आपके इस एक्सेल शीट पे भी एक्सेल में भी आपके फॉर्मूलेस होते हैं. कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ को आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली आपके कैलकुलेशंस में यूज आते हैं. जैसे कि यहाँ पर गिवन भी है, कुछ आपके ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको ऑपरेंड्स कहा जाता है. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1 प्लस C1. यहाँ पर जो A1 है, B1 है, ये सारे आपके सेल एड्रेसेस हैं और जो आपका प्लस साइन है वो आपका ऑपरेटर है. उसी के जैसे बिल्कुल नीचे जैसे 23 है 78 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर जो 23, 78, 2 है ये आपके ऑपरेंड्स हैं और ये प्लस डिविजन ये आपके operators हैं. Rules to enter a formula. The different rules to enter a formula are as follows. Number 1, every Excel formula begins with an equal to sign. Second, the equal to sign can be followed by a number, cell address, cell range, mathematical operator or function and so on. Number 3, there must be no space between the equal to sign and the operands. तो आपको अगर फॉर्मूला एंटर करना होता है उसके कुछ आपके रूल्स होते हैं, अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हर एक फॉर्मूला ऊपर आपने पढ़ा भी, जैसे इक्वल टू से स्टार्ट हुआ था, उस इक्वल टू के साइन से ही आपका हर फॉर्मूला स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा. उस इक्वल टू के बाद आपका नंबर, सेल एड्रेस, सेल रेंज, मैथमेटिकल ऑपरेटर, फंक्शन या कुछ भी आ सकता है. कोई स्पेस नहीं होना चाहिए आपकी इक्वल टू साइन और ऑपरेंड्स के बीच में. तो ये 3 रूल्स हैं फॉर्मूलाज लिखने के. इनमें से एक भी आपने स्किप करा वो फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा. एंटरिंग अ फॉर्मूला. In an Excel worksheet, you can type a formula either in the formula bar or in cells. On typing a formula in a cell, it also gets displayed in the formula bar. The formula bar consists of 2 buttons which are as follows. Enter button. This button evaluates the value of the formula. It works like pressing the enter key. Cancel button. This button cancels the operation which is to be performed. तो आपके जो formulas होते हैं वो आप एंटर कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू. या तो आप फॉर्मूला बार में या फिर आप सेल्स में आपके डेटा को एंटर करते हैं, फॉर्मूलाज को एंटर करते हैं.
जैसे ही आप सेल पे कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं वो आपके फॉर्मूला बार पे भी डिस्प्ले हो जाता है। इसके अलावा आपके फॉर्मूला बार में दो तरीके के बटन होते हैं, एक है एंटर बटन, ये बटन इवैल्यूएट करता है जो आपके फॉर्मूले में वैल्यूज होती हैं, ये आपके एंटर की वाली की तरह फंक्शन करता है। फिर दूसरा होता है कैंसिल बटन, ये आपकी ऑपरेशन जो परफॉर्म होने के लिए रेडी रहते हैं उसको कैंसिल आउट कर देता है। यूजिंग द फॉर्मूले, we can enter a formula in a cell by either double clicking in the cell and typing the formula directly into it or typing it in the formula bar after selecting the cell. Let us now learn to create a simple formula in a worksheet by using the steps given below. Step 1. Open the MS Excel program and type the data in the cells from A1 to F1 as shown below. Notice that cell F2 is blank, but it should contain the sum of the marks in the cells B2, C2, D2 and E2. Step 2. Double click in the cell F2 and type out the formula as shown is equals to B2 plus C2 plus D2 plus E2. Then click on the enter button. The required sum will be displayed in the cell F2. Step 3. To apply the formula to other cells, point to the fill handle of the cell containing formula F2 and drag down to enclose cells up to F6. Step 4. The formula will get copied to all the enclosed cells and the total will appear in all the cells F3, F4, F5 and F6. तो अगर आपको फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कुछ करना है तो उसके लिए आपके कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। या तो आप सिंपली उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं आपके सेल पे एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर फॉर्मूलाज, अदरवाइज यू हैव सम स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। सबसे पहले आपको MS Excel प्रोग्राम को ओपन अप करना है और आपके डेटा को सेल्स में टाइप करना है A1 से लेकर F1 में, जैसा कि आपको पिक्चर में गिवन है। इसके बाद आप नोटिस करेंगे आपका जो F2 ब्लैंक है वो एम्प्टी है, लेकिन ये कंटेन करेगा बाद में आपका सम जो कि आपका B2, C2, D2 और E2 का रिजल्ट होगा। इसके बाद आपको F2 पे डबल क्लिक करना है और टाइप करना है आपका फॉर्मूला, जैसे कि इज इक्वल्स टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। आफ्टर दैट आपको एंटर बटन पे क्लिक करना है। आपका जो रिक्वायर्ड सम है वो आपके F2 जो सेल है उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को बाकी सेल्स पे अप्लाई करने के लिए आपको फिल हैंडल पे पॉइंट करना है जो कि आपके सेल में होगा कंटेनिंग द फॉर्मूला F2, और आपको ड्रैग करना है इसको उन सारे सेल्स पे अप टू F6। आपका फॉर्मूला उन सारी एनक्लोज्ड सेल्स में कॉपी हो जाएगा और आपका टोटल अपीयर हो जाएगा इन ऑल द सेल्स जो कि हैं F3, F4, F5 एंड F6. Copying a formula. There are two methods to copy a formula using the fill handle. Step 1. Select the cell that contains the formula. Then position the mouse pointer over the lower right corner of the cell until the black cross appears. Step 2. Drag the fill handle over the cell or cells to which you want to copy the formula. Then release the mouse button. अब अगर आपको fill handle को use करते हुए अपने फॉर्मूला को कॉपी करना है, दो तरीके होते हैं। पहला है fill handle को यूज़ करते हुए। सबसे पहले तो आप उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें फॉर्मूला है, उसके बाद आप अपने माउस पॉइंटर को पोजीशन करेंगे लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल में जब तक कि वो माउस का पॉइंटर ब्लैक क्रॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसके बाद आप ड्रैग करेंगे फिल हैंडल को उन सेल्स के ऊपर जिसके ऊपर आप फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हैं और उसके बाद अपने बटन को रिलीज कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट। Step 1. Select the cell that contains the formula and on the home tab, click copy. Step 2. Select the cell or cells that you want to copy it to. A. To copy the formula and any formatting on the home tab, click paste. B. To copy the formula only on the home tab, click on drop down arrow of paste tool and select paste special and then select formulas and click on OK button. अब आपका दूसरा तरीका क्या है कॉपी एंड पेस्ट का। इसके लिए आप सबसे पहले तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि फॉर्मूला है, उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे और क्लिक करेंगे कॉपी पे। इसके बाद आपके पास दो स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको कॉपी करना होता है। सबसे पहले आप कॉपी करेंगे आपके फॉर्मूला को या फिर किसी भी फॉर्मेटिंग को होम टैब पे और आप क्लिक कर देंगे पेस्ट पे। इसके बाद जो आपका फॉर्मूला कॉपी हो रखा है आपके होम टैब पे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा पेस्ट टूल का, उस पर आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है पेस्ट स्पेशल और उसके बाद आपको फॉर्मूला को सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है।
Do you know if you change the value in any of the cells whose address is used in the formula, the result in the corresponding cell changes automatically? तो अगर आप किसी भी सेल का डेटा चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेल जिसमें रिजल्ट होता है वो चेंज हो जाता है. Cell references. The cell addresses in a formula are also known as cell references. Cell referencing means how a cell address behaves in the formula when it is copied from one cell to the other. There are mainly three types of cell references. Number one, relative cell reference. Second, absolute cell reference. Third, mixed cell reference. Cell reference is called relative when both parts are not fixed. It is called absolute when both parts are fixed, and it is called mixed when one of them is fixed. अब आपके cell references होते हैं, सेल रेफरेंसेस होते हैं जो आपका सेल एड्रेस होता है एक फॉर्मूला में, उसको बोलते हैं सेल रेफरेंस. तो सेल रेफरेंस मतलब एक सेल एड्रेस किस तरीके से बिहेव करता है जब उसको कॉपी किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में. तीन टाइप के आपके सेल रेफरेंसेस होते हैं. पहला है रिलेटिव सेल रेफरेंस, फिर है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, फिर है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस. तो एक सेल रेफरेंस को आप रिलेटिव तब कहेंगे जब दोनों ही पार्ट्स आपके फिक्स्ड नहीं हैं. फिर आपका एब्सोल्यूट जो होता है वो तब होता है जब आपके दोनों के दोनों पार्ट्स फिक्स्ड होते हैं. एंड मिक्स्ड तब होता है जब आपका कोई सेल का एक पार्ट फिक्स्ड होता है दूसरा नहीं होता है. रिलेटिव सेल रेफरेंस. Relative cell reference is the normal way of addressing the cells like A2, B2 and so on. Relative cell reference type in Excel changes when a formula is copied or dragged to another cell. In Excel, cell referencing is relative by default. It is the most commonly used cell reference in the formula. The below mentioned pharma cells table below contains medicine products in column C, C10 is to C16, quantity sold in column D, D10 to D16, and total sales value in column F, which we need to find out. To calculate the total sales for each item, we need to multiply the price of each item by its quantity of that. Let us check out the first item. For the first item, the formula in cell F10 would be multiplication in Excel, D10 into E10. It returns the total sales value. Instead of entering the formula for all the cells, we can apply a formula to the entire range. To copy the formula down the column, click inside cell F10 to see that the cell is selected. Then select the cells till F16 so that column range will get selected. Then we will click Ctrl plus D to apply the formula to the entire range. Here, when you copy or move a formula with a relative cell reference to another row, automatically row references will change. Similarly for columns also. We can notice that the cell reference automatically adjusts to the corresponding row. Relative cell reference में आपकी जो cell addressing होती है normal type से ही होती है, A2, B2 and so on. इसमें आप जो आपका type होता है Excel में वो change करता है जब भी आप किसी भी type के address को या cell को drag करके दूसरे sheet पे ट्रांसफर करते हैं. तो जैसे आपका नीचे इमेज में भी गिवन है जहां पर आपका एक फार्मा की पूरी डिटेल्स गिवन है, यहाँ पर मेडिसिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कॉलम सी में C10 से लेकर C16 तक है. क्वांटिटी सोल्ड आपकी कॉलम डी में है D10 से लेकर D16 तक. फिर टोटल सेल वैल्यूज है कॉलम एफ में जो आपको निकालनी है. अब निकालेंगे कैसे, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक प्रोडक्ट को उसके प्राइस से. तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सेल्स को मल्टीप्लाई कर देना है. यहाँ पर जैसे D10 को आपको E10 से मल्टीप्लाई करना है, आपकी टोटल सेल्स वैल्यू निकल आएगी. अब हर सेल में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके हर एक फॉर्मूले को आपके सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स में सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको हर बार इसको सिलेक्ट करके ऐड ऑन या मल्टीप्लाई ना करना पड़े. उसके बाद हम कंट्रोल प्लस डी पे क्लिक करेंगे अपने फॉर्मूले को एंटायर रेंज पे सिलेक्ट करने के लिए. उसके बाद जहां पे भी आपको कॉपी करना है या मूव करना है फॉर्मूले को आपके रिलेटिव सेल रेफरेंस से अनदर रो पे, ऑटोमेटिकली जो आपकी रो रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे या फिर कॉलम्स में भी आपकी सेम तरीके की एक्टिविटी होगी. हम ये नोटिस करेंगे कि जो सेल रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अपने आप को कॉरेस्पॉन्डिंग रो के अकॉर्डिंग. Absolute cell reference. Absolute cell reference contains dollar signs attached to each letter or number in a reference. Example, $B $4.
Suppose we mention a dollar sign before the column and a row identifiers. It makes absolute or logs both the column and the row. That is where the cell reference remains constant even if it is copied or dragged to another cell. The below mentioned pharma product table contains medicine products in column H, H6 to H12 and its old price in column I, I16 to I12. And new price in column J, which we need to find out with the help of absolute cell reference. We can see that the rate for each product is increased by 5% effective from Jan 2019 and is listed in cell K3. To calculate the new price for each item, we need to multiply the old price of each item by the percentage price increase of 5% and add the old price to it. Let us check out the first item. For the first item, the formula in cell J6 would be I6 into K dollar, $3 plus I6, which returns the new price. Here the percentage rate increase for each product is 5%, a common factor. Therefore, we must add a dollar symbol in front of the row and column number for the cell K3 to make it an absolute reference, that is K dollar, $3. We can add it by clicking the function F plus F4 key once. Here the dollar sign for the cell K3 fixes the reference to a given cell where it remains unchanged no matter when you copy or apply a formula to other cells. Here K dollar, $3 is an absolute cell reference where I6 is a relative cell reference. It changes when you apply it to the next cell. To copy the formula down the column, click inside cell J6 to see that the cell has been selected. Then we must select the cells till J12 so that column range will get selected. Then click Ctrl plus T so the formula is applied to the entire range. तो अब आपको absolute cell reference जहाँ पर आपका जो data है दोनों parts उसके fixed रहते हैं, change नहीं होते हैं. तो इसमें जो आपका absolute cell reference होता है डॉलर साइन अटैच होता है हर एक लेटर या फिर नंबर के पहले आपके जो रेफरेंस में गिवन होता है, जैसे $B, $4, तो उससे पहले आपका डॉलर का साइन मेंशन होगा. इसका मतलब दोनों के दोनों पार्ट्स आपके फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं होंगे इवन इफ यू कॉपी और मूव द फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर. इसके बाद आपको अगर किसी भी एक रो या कॉलम को एब्सोल्यूट बनाना है या लॉक करना है तो उससे पहले आपका एक डॉलर का साइन आ जाता है. इसका मतलब ये होता है कि जो सेल है वो कांस्टेंट रहता है इवन इफ यू कॉपी और ड्रैग इट टू अनदर सेल. जैसे नीचे आपको जो टेबल गिवन है उसमें आपकी फार्मा के कंटेंट्स हैं. कॉलम H में H6 से लेकर H12 तक आपका प्रोडक्ट्स है. उसके बाद उसका ओल्ड प्राइस कॉलम I में है, I6 से लेकर I12 तक. न्यू प्राइस आपका कॉलम J में है जो हमको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. इसमें जो हर एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है 5% से, जो कि 2019 जनवरी से इफेक्टिव हुआ है, स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका सेल K3 में गिवन है. अब हर एक का न्यू प्राइस निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको ओल्ड प्राइस से हर एक आइटम के, एंड उसका प्राइस आपको 5% से इंक्रीज करना पड़ेगा और पुराने प्राइस में उसको ऐड करना पड़ेगा. अब जैसे हम चेक करते हैं एक फर्स्ट आइटम का प्राइस, तो पहले आइटम के लिए आपको फॉर्मूला जो है J6 में आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, I6 इंटू K डॉलर, $3 प्लस I16, जो कि आपका न्यू प्राइस आपको बता देगा. इसके बाद आपको जो परसेंटेज है यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 5% से इंक्रीज करा है कॉमन फैक्टर में. देयरफॉर हर एक सिंबल से पहले एक डॉलर का ऐड होना जरूरी है, ये दिखाने के लिए कि जो कॉलम है या नंबर है वो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है, जो कि आपका सेल K3 में है. जस्ट टू मेक इट एन एब्सोल्यूट रेफरेंस, दैट इज K डॉलर या फिर $3. इसको आप ऐड कर सकते हैं सिंपली बाय क्लिकिंग द फंक्शन प्लस F4 की वंस, एक ही बार. यहाँ पर जो डॉलर साइन है K3 का वो फिक्स कर देगा आपके रेफरेंस को जिस भी गिवन सेल में आपने इसे क्लिक कर रखा है, और वो अनचेंज रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा, नो मैटर आप अपने डेटा या फॉर्मूला को ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं किसी और सेल में तो भी वो चेंज नहीं होगा. यहाँ पर जो $3 या K डॉलर है ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है और I6 जो है वो रिलेटिव है. एब्सोल्यूट मतलब वो चेंज नहीं होगा और रिलेटिव का मतलब अगर आप उसे मूव या ड्रैग करते हैं तो वो चेंज होगा.
अब अगर आपको ये कॉपी करना है फॉर्मूला अपने कॉलम में, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा J6 सेल के अंदर, जिस भी सेल में आपने सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आपको सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये मस्ट है, J12 तक। उसके बाद आपका जो कॉलम रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। Ctrl+D आप दबाएंगे सो दैट आपका फॉर्मूला एंटायर रेंज पे कॉपी हो जाए। Mixed cell reference in Excel. In Excel, mixed cell references contain dollar signs attached to either the letter or the number in a reference. Example, $B2 or $B4. It is a combination of relative and absolute references. In the below mentioned table, we have values in each row D22, D23 and D24 and columns E21, F21 and G21. Here we have to multiply each column with each row with the help of a mixed cell reference. We can use two mixed cell references here to get the desired output. Let us apply two types of mixed references below in cell E22. The formula would be D22 multiplied by E21 $। अब आपके मिक्स्ड सेल रेफरेंस आते हैं जिसमें आपका एक पार्ट एब्सोल्यूट यानी कि फिक्स्ड होता है और एक पार्ट रिलेटिव यानी कि चेंज हो सकता है ड्रैग, कॉपी या फिर मूव करने पे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है $B2 या फिर $B4, तो ये आपका कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का। जैसे आपकी बिलो टेबल में आपकी जो वैल्यूज है ईच रो में D22, D23, D24 और कॉलम्स में E21, F21 एंड G21, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे हर एक कॉलम को हर एक रो से विद द हेल्प ऑफ मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस। तो यहाँ पर आप दो मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके डिजायर्ड आउटपुट को पाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर करा गया है। फॉर्मूला आपका होगा D22 multiplied by E21 #1 D22 absolute column and relative row. The dollar sign before column D indicates that only the row number can change at the same time the column letter D is fixed. It does not change. When we copy the formula to the right side, the reference will not change because it is locked. But when you copy it down, the row number will change because it is not locked. तो यहाँ पर जो आपका D$22 है यानी कि एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो, इसका मतलब ये है कि आप चाहे कॉलम वाले मटेरियल को मूव करें, कॉपी करें, कुछ भी करें, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एब्सोल्यूट है यानी कि फिक्स्ड है। ऑन द अदर हैंड जो रो है वो आपकी मूव होते हुए चेंज हो सकती है क्योंकि वो रिलेटिव है। तो यहाँ पर जो भी आपका फॉर्मूला है राइट साइड पे वो आपके रेफरेंस को चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो लॉक्ड है। बट व्हेन यू कॉपी इट डाउन तो आपका रो नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि वो लॉक्ड नहीं है। #2 E$21 absolute row and relative column. The dollar sign right before the row number indicates only the column letter E can change, whereas the row number is fixed. It does not change. The row number will not change when copying the formula because it is locked. But when we copy the formula to the right side, the column alphabet will change because it is not locked. Now, we will click inside the cell E22. As a result, first we will see that the cell is selected. Then we will select the cells until G24 so that the entire range will get selected. Next, we will click on the Ctrl+D key and later Ctrl+R. तो अब आपका जो नंबर है वो है E$21 एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रो है उस पर अगर आप मूवमेंट करेंगे, किसी भी टाइप का कॉपी पेस्ट या मूव करेंगे या ड्रैग करेंगे तो आपका रो जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आपका कॉलम है, कॉलम ई, वो आपका चेंज होगा क्योंकि वो लॉक्ड नहीं है। इसके बाद अगर आप क्लिक करेंगे आपके E22 सेल के अंदर, आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो भी आपका सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद आपको G24 तक सिलेक्ट करना है ताकि आपकी पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाए। एंड आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है Ctrl+D की पे और उसके बाद Ctrl+R। Functions in MS Excel. A function in MS Excel is a predefined formula that allows us to perform a particular kind of computations like adding and finding the sum of cell values, finding the average of cell values and so on.
They use the specified values called arguments in a particular order and return the values. तो आपका जो functions होते हैं, अभी तक आपने formula के बारे में पढ़ा, अब आपके functions जो होते हैं MS Excel में ये प्री डिफाइंड formulas होते हैं जो आपको किसी भी टाइप का स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हेल्प करते हैं. प्री डिफाइंड फॉर्मूला मतलब पहले से ही वो आपके सिस्टम में फीड होते हैं, जैसे कि आपका एडिंग हो गया, सम्स का फाइंड आउट करना हो गया, सेल वैल्यूज हो गया, फाइंडिंग द एवरेज ऑफ मल्टीपल सेल्स या फिर मल्टीपल कॉलम्स एंड सो ऑन. तो ये अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जिनको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करते हैं और आपकी वैल्यूज को रिटर्न करते हैं. रूल्स टू क्रिएट अ फंक्शन. द डिफरेंट रूल्स टू राइट अ फंक्शन आर एज follows. Number 1, a function begins with an equal to sign followed by the function name. Second, function name must be followed by the arguments separated by colon and a closing parenthesis. Number 3, there should not be any space between the equal to and the function name. Arguments are the values that are used by the function to perform manipulations and or calculations. Arguments can be given to a function in the form of both values, numbers, and cell addresses. For example, sum 14, 144, 236, sum A1, A2, B6, and sum A2 colon E6 are all perfectly valid arguments for the sum function. तो फंक्शन को क्रिएट करने के भी आपके कुछ रूल्स होते हैं. सबसे पहले बिल्कुल फॉर्मूला की तरह ही स्टार्ट होना चाहिए इक्वल टू साइन से. उसके बाद आपके फंक्शन का नाम आ जाएगा. आपका जो फंक्शन का नाम है वो भी आपका, उसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए जो सेपरेट होने चाहिए आपके कोलन से, 2 वर्टिकल डॉट्स जिन्हें कहते हैं, एंड अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस. कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए इक्वल टू और फंक्शन नेम के बीच में. जो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज हैं ये यूज करी जाती है फंक्शंस में टू परफॉर्म मैनिपुलेशंस या फिर कैलकुलेशंस. जैसे कि सम लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके 14, 144, 236, फिर सम लिख के ब्रैकेट ओपन करके A1, A2, B6 एंड सम फिर ओपन करके A2 कोलन आएगा E6. ये सारे के सारे परफेक्टली वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं. कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस. Excel provides many categories of functions. Some of them are statistical functions, calculates the maximum, minimum, average, etc. of a set of numeric data. Data and time functions calculates the day, month and year in a date and the hour, minute and second at a particular time. Mathematical functions calculates the square root or absolute value of a number, product of numbers, etc. Logical functions evaluates conditions such as x is greater than 5 and give the result as true or false. Text functions performs a number of operations on strings, that is a collection of characters like hello, friend, computer, etc. such as finding the length of a string, joining two strings, searching for one string inside another, etc. अब आपके फंक्शंस के भी कुछ कैटेगरीज होती हैं. पहली है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस. ये आपको मैक्सिमम, मिनिमम या सेल का एवरेज कैलकुलेट करने में हेल्प करती है. फिर डेट एंड टाइम फंक्शंस आता है. इसमें आपका जो डे, मंथ या ईयर होता है वो डेट, टाइम, आवर, मिनट एंड सेकंड के फॉर्मेट में आपका कैलकुलेट होता है, एक चीज एक टाइम पे. फिर आपके मैथमेटिकल फंक्शंस आते हैं. स्क्वायर रूट को आपका कैलकुलेट करना हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई नंबर की, प्रोडक्ट हो गया आपके नंबर्स का, ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं. लॉजिकल फंक्शंस जैसे कि x इज ग्रेटर दैन 5, ये आपको बताता है सही है या गलत है. फिर आपके टेक्स्ट फंक्शंस आते हैं. इसमें आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन या स्ट्रिंग्स होते हैं जैसे कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक हेलो, फ्रेंड्स, कंप्यूटर, एटसेट्रा. और आपकी लेंथ जो होती है स्ट्रिंग की वो फाइंड आउट करता है, 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर सर्च भी करता है और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. लेट अस डिस्कस दीज कैटेगरीज इन डिटेल. मैथमेटिकल फंक्शंस. फंक्शंस, पर्पस, एग्जाम्पल. सम, range, it returns the sum of a range. Input is equals to sum 4, 8, 12, 16. Output 40. Product, range, it multiplies the values in a range of cells. Input is equals to product 4 to 8. Output 64.
Mod number divisor, it returns the remainder after a number is divided by the divisor. Input is equals to mod 85, output 3. SQRT number, it returns the square root of the given number. Input is equals to SQRT 81, output 9. INT number, it rounds number to an integer value. Input is equals to INT 14.25, output 14. Power number, power, it returns the result of a number raised to some power. Input is equals to power 5, 3, output 125. Count, range, it returns the count of the number of values in the selected range. Input is equals to count 4, 8, 12, output 3. Round, number, number of digits, it returns a number after rounding to the specified digits. Input is equals to round 35.666, 2, output 35.67. ABS number, it returns the absolute value of a given number. Input is equals to ABS minus 25, output 25. तो यहाँ पर आपके कुछ फंक्शंस हैं, उनके स्पेसिफिक पर्पस हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, जैसे कि सम। ये जो सम होता है ये आपको पूरे की पूरी रेंजेस का सम बताता है। जैसे यहाँ पे इनपुट आप देंगे सम, नंबर डालेंगे 4, 8, 12, 16, आउटपुट आपको मिलेगा 40। प्रोडक्ट में जो भी आपकी इस रेंज ऑफ सेल्स होते हैं उसका प्रोडक्ट आपको देता है, मल्टीप्लाई करता है वैल्यूज को। इनपुट आप देंगे प्रोडक्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे 4 to 8, आउटपुट आपको मिलेगा 64। उसके बाद आपका आता है मॉड, नंबर एंड डिवाइजर। इसमें आपका जो रिमाइंडर होता है ये आपको बता देता है ये डिवाइड करने के बाद। जैसे आप इनपुट देंगे मॉड 8 और 5, आपका रिमाइंडर आउटपुट आपको बताएगा 3। SQRT ये आपको स्क्वायर रूट देता है किसी भी गिवन नंबर का। इनपुट आप डालेंगे SQRT ब्रैकेट में 81, आउटपुट आपको देगा 9। फिर INT आता है, ये इंटीजर वैल्यूज जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनका राउंड ऑफ करके दे देता है। जैसे कि आप इनपुट डालेंगे INT 14.25, तो ये आपको आउटपुट देगा 14। फिर आपका आता है पावर, इसमें आपका जो भी नंबर होता है वो सेम पावर में रेस करके आपको बता देता है। जैसे कि आप इनपुट देंगे पावर 5, 3, तो आउटपुट देगा 125। फिर आपका काउंट होता है, इसमें आपकी जितनी वैल्यूज होती हैं सिलेक्टेड रेंज में उसको वो काउंट करके देता है। जैसे कि इनपुट आप देंगे काउंट 4, 8, 12, आउटपुट देगा 3। फिर आता है राउंड, नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें आपका जो स्पेसिफाइड डिजिट है उसको राउंड ऑफ करके दे देता है। जैसे इनपुट देंगे राउंड 35.666, 2, तो आउटपुट देगा 35.67। फिर आता है ABS, यह आपका एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है नंबर की। जैसे आप इनपुट देंगे ABS minus 25, आउटपुट आपको मिलेगा 25। Let us use the mathematical functions in Excel. Following are the steps to use a sum function. Number 1, click on the cell where you want to find the result of the function, let us say E4. Second, type equal to sign, type the function name. For example, here we type sum. Third, type open parenthesis symbol, that is single inverted comma, round bracket and inverted comma close. Fourth, click on the first cell C4 to be included in the formula. Number 5, drag the mouse pointer to the last cell D4. 6, formula bar, the cell will display is equals to sum C4 colon D4. Number 7, type the closing parenthesis symbol, that is round bracket, and press the enter key. The cell will display the calculated result. तो यहाँ पर अगर आपको सपोज सम निकालना है तो उसके लिए आप सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे जिसका आपको सम चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप ले लीजिए एग्जाम्पल E4 का, आप इक्वल टू साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका फंक्शन है सम, पैरेंथीसिस देंगे, ओपनिंग पैरेंथीसिस जो कि आपका राउंड ब्रैकेट होता है। इसके बाद आप फर्स्ट सेल डाल देंगे जैसे कि C4, जो भी आप फॉर्मूला में इंक्लूड करना चाहते हैं। माउस का पॉइंटर आप लास्ट सेल D4 पर लेके जाएंगे, फिर आप फॉर्मूला बार पे अपना सेल पे डिस्प्ले करेंगे जो होगा इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन करके C4 कोलन D4, और आप क्लोजिंग पैरेंथीसिस देंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट, और एंटर पे प्रेस कर देंगे तो आपका जो भी कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। Text functions. Functions, purpose, example. Concatenate. Text 1, text 2. It joins together two or more different text strings. Example, input is equals to concatenate touchpad. Output, touchpad.
Left, text num chars. It returns the specified number of characters from the left side of the text string. Input left touch 3, output TOU. Right text num chars. It returns the specified numbers of characters from the right side of the text string. Input is equals to right touch 3, output UCH. LEN text. It returns the length of the text string. Input len touch, output 5. Upper text, it converts the text string into uppercase. Input upper touch, output touch. Lower text, it converts the text string into lowercase. Input is equals to lower touch, output टच. तो यहाँ पर आपके कुछ फंक्शंस हैं, उसके पर्पस हैं और एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहला है कॉन्सर्टिनेट. कॉन्सर्टिनेट में आपकी दो स्ट्रिंग्स को ये अटैच कर देता है. जैसे आप डालेंगे कॉन्सर्टिनेट टच पैड तो आउटपुट मिलेगा टच पैड. लेफ्ट, इसमें जो भी आपने टेक्स्ट ये डाला हुआ है उसके जो पहले के 3 आपके लेटर्स होंगे वो आपको बता देता है. जैसे आप इनपुट डालेंगे लेफ्ट टच 3 तो आउटपुट आपको देगा TOU. फिर राइट वाला आता है, इसमें आप राइट टच 3 डालेंगे तो ये आपको UCH, जो लास्ट के 3 है अल्फाबेट, वो आपको दे देगा. फिर आता है LEN, ये आपका लेंथ बताता है. अगर आप डालेंगे LEN टच तो टच में क्योंकि 5 लेटर्स होते हैं तो ये आपको आउटपुट देगा 5. फिर आता है अपर. अपर में आपका जो भी इनपुट आप डालेंगे, फॉर एग्जांपल टच, तो आपका ये जो वर्ड है टच, इसको अपर केस कैपिटल लेटर्स में दिखा देगा. सिमिलरली लोअर करेंगे तो लोअर में आपके जो स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टच है तो टच को ये लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में शोकेस करेगा. Let us use the text functions by performing the following steps. Step 1, type the following data in the Excel worksheet. Step 2, type is equals to concatenate A2, B2 function in the cell C2 to concatenate the first name and last name. Step 3, press the enter key from the keyboard. When you press the enter key, first name and last name appear after concatenation. तो यहाँ पर आपको कॉन्सर्टिनेट यानी कि ऐड ऑन करनी है दो स्ट्रिंग्स को. तो सबसे पहले तो आप डाटा टाइप कर लेंगे एक्सेल वर्कशीट पे. उसके बाद आप टाइप करेंगे इज इक्वल्स टू कॉन्सर्टिनेट A2 B2 आपके सेल 2 के फंक्शन में, C2 के फंक्शन में, ताकि फर्स्ट स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो कॉन्सर्टिनेट यानी कि ऐड हो जाए. इसके बाद आप एंटर की पे प्रेस कर देंगे. एंटर की पे प्रेस करते ही जो पहला नाम और लास्ट नेम है वो एक साथ ऐड ऑन हो जाएगा, कॉन्सर्टिनेट हो जाएगा. Logical functions. Functions, purpose, example. Max, range, it returns the largest value in the given range. Input is equals to max 4, 16, 12, 9, output 16. Min, range, it returns the smallest value in the given range. Input is equals to min 4, 16, 12, 9, output 4. Average, range, it returns the average of the given numbers in a range. Input is equals to average 12, 3, 6, output 7. If condition value 1, value 2, it checks whether the given condition met and returns value 1 if the condition evaluates to true and returns value 2 if the condition evaluates to false. Percentage is equals to 80. Input is equals to if percentage is greater than equal to 50. Passed, failed. Output, passed. अब यहाँ पर आपकी कुछ फंक्शंस हैं, उसके कुछ पर्पस हैं और एग्जाम्पल हैं. पहला है मैक्स. ये आपके जो भी आप इनपुट डालेंगे उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपको बताएगा. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, मैक्स में 4, 16, 12, 9 लिखा है, यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा 16. मिनिमम में आपको एक गिवन वैल्यूज का मिनिमम बताएगा. जैसे यहाँ 4, 16, 12, 9 है तो मिनिमम आपका 4 है तो आउटपुट आपको मिलेगा 4. फिर आपका एवरेज आता है, ये आपके सारे गिवन नंबर्स का एवरेज आपको देता है. जैसे यहाँ 12, 3, 6 है, आउटपुट आपको मिलेगा 7. अब आपका आता है इफ कंडीशन वैल्यू 1 वैल्यू 2. तो अगर आपने जो भी कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन से मैच करती है तो वो आपको वैल्यू 1 यानी कि ट्रू पे लेके जाएगा, गलत है तो वैल्यू 2 पे लेके जाएगा. जैसे यहाँ परसेंटेज आपको गिवन है 80, इनपुट आपने डाला है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, पास्ट या फेल्ड, तो आउटपुट क्या होगा पास्ट, क्योंकि यहाँ परसेंटेज आपका 50 से बड़ा है, 80 है. लेट अस यूज द लॉजिकल फंक्शंस इन एक्सेल. परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू यूज द लॉजिकल फंक्शंस. स्टेप 1, टाइप द फॉलोइंग डेटा इन द एक्सेल वर्कशीट. स्टेप 2, type is equals to max C2 colon F2 function in the cell G2 to find the maximum marks. Step 3, press the enter key from the keyboard.
When you press the enter key, the maximum marks appear in the cell G2. Using the autofill feature, find the maximum marks of each student. Similarly, we can find the minimum marks by using the min फंक्शन. तो यहाँ पर आप लॉजिकल फंक्शंस जो है एक्सेल में उसको यूज करते हुए आंसर्स निकालेंगे. तो सबसे पहले तो आपको जो फॉलोइंग डेटा है आपकी एक्सेल वर्कशीट में उसको टाइप कर लेना है. टाइप करने के बाद आपको टाइप करना है इज इक्वल्स टू max और ब्रैकेट में आपको डालना है C2:F2 फंक्शन आपके सेल G2 में टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. इसके बाद आपको एंटर की पे प्रेस कर देना है. एंटर की प्रेस करते ही आपको स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स डिस्प्ले हो जाएगा. इसके बाद आपको ऑटोफिल फीचर को यूज करते हुए बाकी सभी स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं. सिमिलर फंक्शन में अगर आपको मिनिमम मार्क्स निकालने हैं तो min फंक्शन का यूज करेंगे तो आपके मिनिमम मार्क्स निकल आएंगे. डेट एंड टाइम फंक्शंस पर्पस एग्जाम्पल. Today, it returns the current date. Input is equals to today. Output 11, 27, 20, 24. Month, today, it returns the current month. Input month today. Output 11. Year, today, it returns the current year. Input year today. Output 2024. Day, today, it returns the current day. Input is equals to day today. Output 27. Now it returns the current system date and time. Input now. Output 11/27/2024 8:36. Hour, time, it returns the hour from a given time. Input hour now. Output 08. Minute, time, it returns the minutes from a given time. Input is equals to minute now. Output is equals to 36. अब आपकी हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस. कुछ फंक्शंस हैं उनके कुछ पर्पस है और एग्जांपल्स हैं. टुडे पे करते ही आपकी जो करंट डेट है वो आ जाएगी. इनपुट आप डालेंगे टुडे, आपकी उस दिन की जो डेट होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी. मंथ अगर आप डालेंगे तो आप इनपुट में डालेंगे मंथ टुडे, तो उस दिन का उस टाइम जो मंथ चल रहा होगा उसका आपको नंबर गिवन हो जाएगा. ईयर में आपकी जैसे ही इनपुट में आप ईयर डालते हैं आउटपुट आपको करंट ईयर मिल जाएगा. जैसे ये साल है 2024. इनपुट अगर डे टू डे डालेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा जो भी उस दिन डेट होगी. फिर अगर आपको नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका करंट सिस्टम का जो ईयर है, डेट है और टाइम आपको गिवन हो जाएगा. जैसे आप इनपुट डालेंगे नाउ तो आउटपुट में आपको उस दिन की डेट और उस टाइम जो टाइम हो रहा है, जैसे यहाँ पे 8:36 आपको एग्जाम्पल लिया गया है, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा. इसके बाद आपका आएगा आवर. आवर में जैसे ही आप इनपुट डालेंगे आवर, आपका जो टाइम का घंटा है, जैसे 8:36 हो रहा है तो 08 आपको वो दिखा देगा. फिर है मिनट, या आपको मिनट दिखाता है टाइम का, जो आपका आउटपुट होगा 36 अगर 8:36 हो रहा है. Let us use the date functions in Excel by performing the following steps. Step 1, type is equals to today in the cell. Step 2, press the enter key from the keyboard. When you press the enter key, the current date appears in the cell. We can also give the reference of a cell containing the date to the month function. Similarly, we can use year and day functions to get the year and day from a date respectively. To use other functions, click on more functions options. तो यहाँ पर अगर आपको डे पता करना है तो सबसे पहले आप स्टेप 1 में टाइप करेंगे टुडे आपके सेल में. स्टेप 2 में आपको एंटर पे प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से. जैसे ही आप एंटर पे प्रेस करेंगे आपके पास करंट डेट अपीयर हो जाएगी सेल में. सिमिलरली अगर आपको डे या फिर ईयर का पता लगाना है तो यही स्टेप को फॉलो करते हुए आपको ये निकाल लेना है. और फंक्शंस अगर आपको एक्सेस करने हैं तो आपको क्लिक करना है मोर फंक्शंस ऑप्शन पे. आपके सामने इसके अलावा और भी फंक्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे. डू यू नो टू यूज द कॉमन फंक्शंस लाइक सम, average, max and min? Click on the down arrow of the auto sum command in the editing group of home tab. तो अगर आपको कॉमन फंक्शंस जैसे कि सम, एवरेज, मैक्स और मिन का यूज करना है तो आपको सिंपली क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे जो आपके ऑटो सम कमांड में होगा इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब. Let's revise. A mathematical expression that includes operands and operators to evaluate the result is called a formula. In an Excel worksheet, you can type a formula either in the formula bar or in cells. Cell referencing means how a cell address behaves in the formulae when it is copied from one cell to other.
The three types of cell referencing are relative, absolute and mixed. There are different functions in Excel 2016 to do various types of calculations. Some of the common functions available in Excel are sum, product, average, max, min, now and today, etc. तो आपके अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आपके ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स इंक्लूड होते हैं ताकि आप रिजल्ट को इवैल्यूएट कर पाए, जिसे फॉर्मूला कहते हैं। आपकी एक्सेल वर्कशीट पे अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, या तो आप खुद उन्हें टाइप कर सकते हैं आपके बार या सेल में, या फिर आपके फॉर्मूलाज में। सेल रेफरेंसिंग होता है जिसमें आपके सेल एड्रेसेस एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिहेव करते हैं जब आपके फॉर्मूलाज को कॉपी किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। आपके रिलेटिव सेल रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होते हैं और मिक्स्ड सेल रेफरेंस होते हैं। आपका जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है उसमें आपके दोनों ही पार्ट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अगर आप ड्रैग या कॉपी करते हैं आपके डेटा को। एब्सोल्यूट में कुछ भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप ड्रैग करें या कॉपी करें या फिर डेटा को मूव करें। तीसरा है मिक्स्ड सेल ऑपरेशन या रेफरेंस, उसमें आपका एक पार्ट एब्सोल्यूट होता है यानी कि चेंज नहीं होगा और दूसरा पार्ट जो होता है वो रिलेटिव होता है यानी कि चेंज हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आप खुद से करिए।